أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. مجلس کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے، اور جس نے ہم سے التماس دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی جہاں جہاں موجود ہے تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مولا مشکل کشا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد مولا سلامت رکھے. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم. اذان محترم، امام زمانہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم دعا امام زمانہ کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ الحسن صلواتک علیہ وعلی آباء فی هذه الساعة وفی کل حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کئی موجود ہیں مل کے ایک مرتبہ مصطفی اور حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذالک. اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ. اللہم لعنہم جمیعا. پروردگار عالم آپ سب کا سننا اور میرا پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و قبول فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان محترم، خالق لم یزل اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم. مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا. مانگنا تم نے ہے اور اس کو مستجاب میں نے کرنا ہے. تم نے مانگنا ہے اور اس کو مستجاب کرنا میرا کام ہے. تمہارا کام ہے مانگنا اور میرا کام ہے اس کو عطا کرنا. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری استجاب کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. اذان محترم، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اور میں انشاءاللہ آج سے باقاعدہ تمام افراد جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے ان کے تمام کی دعا جو ہے وہ نام لے کے انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی کی جائے گی، اور امام رضا کی بارگاہ میں یہاں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے استغاثہ کیا جائے گا. پروردگار عالم تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اذان محترم، اللہ یہ ارشاد فرما رہا، زبان اللہ نے دی ہے باتیں کرنے کے لیے اپنے سے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے. یعنی انسان کے پورے وجود کی خلقت کا سبب اصلی جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. آنکھیں اللہ نے دی عبادت کے لیے، کان دیے عبادت کے لیے، زبان دی عبادت کے لیے، ہاتھ اللہ نے دیے عبادت کے لیے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ انسان کو عبادت کے لیے دیا ہے، اور انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے عبادت کے لیے کہ انسان کا کوئی لمحہ رائے گاہ نہ جائے، اور انسان کسی لمحے جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اطاعت سے غافل نہ ہونے پائے. انسان اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، اور یہی ثمرہ ہے کہ جو انسان اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے
تو اس کو حق عطا کر دیا جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے تم اس کو پورا کر رہے ہو۔ تو اب عزیزان محترم یہ کیا چکر ہے، یہ کیا سبب ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں عبادت کا سوال آتا ہے یا عبادت کی بات آتی ہے تو فوراً نماز ہمارے ذہن میں آتی ہے، جب ہمارے ذہن میں عبادت کی بات آتی ہے تو فوراً روزہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، جب ہمارے ذہن میں عبادت کی بات آتی ہے تو فوراً حج کا تصور ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے کا تصور اجاگر ہو جاتا ہے، غریبوں کی مدد کرنے کا تصور اجاگر ہو جاتا ہے، غریبوں کی تیمارداری کا تصور ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ سب عبادات ہیں، بے شک یہ سب عبادتیں ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اب عبادت کا تصور آئے کبھی یہ بھی سوچ لیا کرو کہ ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کو دل میں بٹھانا عبادت ہے۔ اور یہ بھی فرمان ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر کے ذریعے، اس لیے کہ علی کا ذکر نہیں ہے، ذکری میرا ذکر ہے، وہ ذکری ذکر اللہ، فرماتے ہیں میرا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو اذان محترم مت رکھے، عبادت کا جب تصور آئے تو فقط ذہن کو ایک طرف محدود نہ کر دیا کیجئے۔ عبادت کنسپٹ ہے کہ جو میں اور شریعت میں عبادت کو بتایا گیا ہے، مومن کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، مولا کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، کربلا جانا بھی عبادت ہے، نجف جانا بھی عبادت ہے، سامرا جانا بھی عبادت ہے، مشہد آنا بھی عبادت ہے، ان کی مجلس کرانا بھی عبادت ہے، مجلس کا تبرک انتظام کرنا بھی عبادت ہے، مجلس کے لیے عزاداروں کو بلانا بھی عبادت ہے، پانی پلانا عبادت، رونے کی شکل بنانا عبادت، رونا عبادت، رونے کے اسباب مہیا کرنا عبادت، تبرک کا انتظام کرنا عبادت، یہ ہر لحاظ سے عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، جب ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، جب تکبیر کہتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، جب ہم یا حسین کہتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، اور جب ہم ماتم کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، جناب سید امام حسین کے غم میں روتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، امام حسین کی مجلس عزا میں آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، امام حسین کا غم منانے والوں کو سلام کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، تبرک لاتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، تبرک کا اہتمام کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، سبیل لگاتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، گھر میں عزاداروں کے لیے لنگر کا انتظام کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم خدا آپ کو سلامت رکھے کہ کسی مقام پہ کبھی یہ نہ سوچئے گا کون سی عبادت ہے، جب اللہ نے کہہ دیا عبادت کے لیے خلق کیا تو اللہ جانے وہ عبادت سے مراد انسان کیا لیتا ہے۔ عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا جس میں ہے وہ عبادت بنتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا ماشاءاللہ تمام افراد جو میرے ساتھ اس وقت لائیو موجود ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ سلسلہ دعا اور معرفت امام کے عنوان پہ آج یہ 16ویں مجلس ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے جہاں تک مولا امام زمانہ امام رضا اجازت دیں گے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو دعا اللہ نے خلق کیا عبادت کے لیے، انسان کو جب اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو عبادت میں کتنے مفہوم آتے ہیں، انسان سوچتا ہے یہ عبادت ہے یا نہیں، یہ عبادت ہے یا نہیں۔ کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں پڑھتے نماز ہے لیکن عبادت نہیں ہوتی، کتنا روزہ رکھنے والے ایسے ہیں رکھتے روزہ ہیں لیکن عبادت نہیں ہوتی، کتنے حج کرنے والے ایسے ہیں حج پہ جاتے ہیں لیکن عبادت نہیں ہوتی، کتنے زکاتیں دینے والے ہیں زکات دیتے ہیں لیکن عبادت نہیں ہوتی، کرنے والے ہیں جہادوں پہ جاتے ہیں، توجہ فرمائیے گا جہادوں پہ جاتے ہیں، زکاتیں دینے والے زکات دے رہے ہیں لیکن عبادت نہیں، کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں تلاوت کر رہے ہیں لیکن عبادت نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کے فرمان کے مطابق کہ قرآن کے لیے ہے کہ قرآن کو کوئی مطہر کے علاوہ کوئی مس نہیں کر سکتا۔ نبی کریم کا فرمان ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن کے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن تلاوت کرنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی کریم کا فرمان ہے رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے قرآن کے قاری ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن کا ایک قاری ہے
तिलावत है। खुदा शाहिद है, पैगंबर का फरमान है, अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अल हक मा अली व अली मा अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और ये जुमला है अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सवादार। और अजीब बात है, जहां हैदर कर्रार की बात आई वहां फौरन नबी करीम फजाइल के बाद दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, अब दुआ के लिए हाथ उठा दिए। तवज्जो है ना भाइयों, खुदा आपको सलामत रखे। इधर मेरे मौला के बारे में कहा हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, फौरन नबी करीम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अल्लाहुम्मा अदरिल हक, ऐ अल्लाह हक को उधर भेज दे जिधर अली जाए। ये नहीं कहा अली को उधर भेज जहां हक जाए, ऐ अल्लाह अली हक को उधर भेज जहां अली हो। तो तवज्जो फरमाइएगा कि हक क्या है। आप जब तलकीन होती है, कभी देखा है मुर्दे को तलकीन पढ़ाई जाती है कि किताब हक्कुन, किताब हक है, जन्नत हक है, नार हक है, साथ हक है, और उसके बाद करते करते अल मौत हक्कुन, और करते करते आगे चलते जाए तमाम आसमानी किताब। और मैं कहा जाऊं ज़ालिका बिअन्नल्लाह, तो हक के साथ अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मंजिलत है। कभी वो आयत उस पे लानत करती है, नमाज का जिक्र है, नमाज नहीं पढ़ता, ये आयत लानत करती है। रोजे का जिक्र है, रोजा नहीं रखता, ये आयत उस पे लानत करती है। हज की अज़ान चल रही है, मैं उसके लिए आपसे पेशगी माजरत चाहता हूं। मौला के जिक्र में जो खलल आ रहा है मैं उसके, नमाज पढ़ता है, नमाज की आयत पढ़ता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता, ये आयत उस पे लानत करती है। रोजे की मंजिल पे आया, रोजा नहीं रखता, वो आयत उस पे लानत करती है। हज की आयत पढ़ता है लेकिन हज नहीं करता, वो आयत उस पे लानत करती है। वालिदैन की इताअत की आयत पढ़ता है, वो अमल नहीं करता, इताअत नहीं करता, वो आयत उस पे लानत करती है। तो अज़ान मोहतरम इमाम मुबीन की आयत पढ़ता है, इमाम को इमाम नहीं मानता, ये आयत उस पे लानत करती है। आयत ततहीर पढ़ता है, इनकी तहारत का मुनकिर है, ये आयत उस पे लानत करती है। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन की आयत पढ़ता है, अजर रिसालत अदा नहीं करता, ये आयत उस पे लानत पढ़ता है। इनकी आले मोहम्मद की रोटियां देने आयत उस पे लानत करती है। और का मुनकिर होता है, तो अज़ान मोहम्मद रखे उस पे लानत करती है जिसपे वो अमल नहीं करता। और यही फरमान है, कितने ऐसे नमाजी हैं कि जिनको नमाज से उठक बैठक के अलावा कुछ नहीं मिलता। कितने ऐसे रोजेदार हैं जिनको रोजे से प्यास और भूख के अलावा कुछ नहीं मिलता। कितने ऐसे हाजी हैं कि जिनको हज करने में मुशक्कत और तकलीफ और चक्कर के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसीलिए तो क्या खूब कहा है कि बदन पे जामे एहराम, दिल में बुग़्ज़े अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। अगर अली का बुग़्ज़ दिल में रख के कोई हज करने जाए तो वो चक्कर होता है, लेकिन वो हज नहीं होता, वो तवाफ नहीं होता। तो अज़ान मोहतरम, ये अल्लाह ने जब सब कुछ दिया है तो अल्लाह ने एक जबान भी इंसान को अता की है। वो जबान किस लिए दी है? जिक्र के लिए जबान दी है, गाने गाने के लिए जबान नहीं दी। अल्लाह ने गीबतों के लिए जबान नहीं दी, अल्लाह ने चुगलखोरियों के लिए जबान नहीं दी, अल्लाह ने झूठ बोलने के लिए जबान नहीं दी, अल्लाह ने तोहमतें लगाने के लिए जबान नहीं दी, अल्लाह ने नाहक गवाही देने के लिए जबान नहीं दी। ये लोथा गोश का अल्लाह ने किस लिए दिया है? जबान वो नहीं होती जो बाजारों में इस्तेमाल हो, जबान वो नहीं होती जो तफरी गांव में इस्तेमाल हो। जबान का मकसद यह है कि अल्लाह ने जबान अता की है, या जिक्र करे तौहीद का या जिक्र करे अहले बैत अतहार का, इनका जिक्र करने के लिए जबान अता की है। तो अज़ान मोहतरम, दुआओं के जरिए इंसान को अहले बैत के दरवाजे पे लाया गया है। दुआओं के जरिए इनके दरवाजे पे इंसान को लाया गया है। आओ इनके दरवाजे पे आ जाओ अगर तुम कुछ लेना चाहते हो। हमने नमाज पढ़ी, दुआओं का मजमुआ। हमने कोई और इबादत की, दुआओं का मजमुआ। हमने नमाज शुरू की, नमाज में सूरह अल-हम्द पढ़ी, तो उसमें हमने जब इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, ये खुद दुआ है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये खुद दुआ है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये खुद दुआ है। हमने कुनूत पढ़ा, ये दुआ है। दो सजदों के दरमियान में हम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ते हैं, ये दुआ है। यानी कुल्लन इंसान की तमाम इबादतें दुआओं का मजमुआ है। यानी इंसान दुआ से अलग नहीं जा सकता। एक मेरी दुआ है, एक आपकी दुआ है, एक मलाइका की दुआ है। मेरी दुआ क्या है? ऐ अल्लाह मुझे ये अता कर। ऐ अल्लाह अगर नेक होगा तो ऐ अल्लाह मुझे मक्के की ज़ियारत, मक्के में हज की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह करबला मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। पैगंबर फरमाते हैं, जब मैं मेराज पे गया तो मैंने मेराज पे एक जगह मिंबर देखा, तो मिंबर पे मैंने क्या देखा?
रअयतु अली इब्न अबी तालिब, और इसको असरार मेराज में आयतुल्लाह करनी गुल पैगानी ने बयान किया है कि देखा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मौजूद है। कहते जब मैंने हैदर कर्रार को देखा, मैंने जिब्राइल से कहा ये अली पहले आ गए हैं, तो कहा नहीं ये अली नहीं है, शबीह अली इब्न अबी तालिब है, अली की शबी है। कहा क्या मतलब? कहा आसमान के फरिश्तों ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। तवज्जो फरमाइएगा, एक मेरी दुआ है, एक आपकी दुआ है, एक मलाइका की दुआ है कि आसमान के फरिश्तों ने दुआ की, ऐ अल्लाह जमीन वाले हर लम्हा हैदर कर्रार की जियारत करते हैं, नबी करीम ने फरमाया है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, तो ऐ अल्लाह हमें भी तो हैदर कर्रार के चेहरे की जियारत नसीब फरमा। तो फरमाते हैं जिब्राइल, अल्लाह ने एक मुकर्रब फरिश्ते को बेसूरत अली इब्न अबी तालिब, अली अबी तालिब का चेहरा दे के यहां रख दिया है, यहां मिंबर पे बिठा दिया है कि इसकी जियारत करो, अली की जियारत का सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, इसकी जियारत करो, हैदर कर्रार की जियारत का सवाब मिलता रहेगा। पे शबी मान पे आसमान पे अल्लाह ने शबी बनाई। किसकी शबी बनाई? हैदर कर्रार की, मिंबर सलूनी के फातिह खैबर की और असदुल्लाह गालिब की शबी बना के अल्लाह ने कहा इसकी जियारत करो, हैदर कर्रार की जियारत का सवाब मिलेगा। अब अल्लाह शबी बनाना कोई हमने यहां से नहीं सीखा। शबी बनाने के लिए अब क्या है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि हजरत ईसा को फांसी नहीं लगी, शुब्बिहा कहते हैं उनकी शबी को फांसी लगी है, शबी को एदाम हुआ है, हजरत ईसा अर्श में मौजूद है, यहां फिर शबी आ गई। और अजीब बात है, अजीब बात है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमासील बनाया करते थे। तवज्जो फरमाइएगा, तमासील बनाते थे। तमासील का नबियों की तमासील बनाते थे। ये हजरत आदम है, ये हजरत नूह है, ये हजरत इब्राहिम है, ये हजरत मूसा है, ये हजरत ईसा है, ये हजरत तमासील बनाते थे। कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई कुनूत में है, कोई क़याम में है, कोई क़याम की हालत में है, कोई तकबीर कह रहा है। तो पूछा गया कि ये इसलिए ताकि इबादत का जज्बा ज्यादा हो, ताकि इनको देखते जाओ, इबादत का जज्बा तुम्हारे अंदर बढ़ता जाए। नबी करीम ने फरमाया, मैंने कहा आपने शबीह क्यों नहीं बनाई? तो आपने फरमाया कि मैं एक हूं कि जिसकी आंखें जो है उसका चेहरा वो देखते जाना, देखोगे उसको जलवा तौहीद का जाहिर होता जाएगा। और ये फरमान है, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी फहमिही, जो आदम का इल्म देखना चाहे, नूह का फहम देखना चाहे, उनकी इब्राहिम की खुल्लत देखना चाहे, मूसा का जलाल देखना चाहे, ईसा का ज़ुहद देखना चाहे, अबी तालिब अली के चेहरे को देख ले, ये तमाम सिफात नजर आ जाएंगी। कमाल है। और जाहिर वसी तो नहीं, नबी करीम का वसी है, नबी करीम के वसी के लिए नबी करीम का फरमान है। और कितनी किताबों में मुकर्ररन कई मकामात पे इरशाद है। तो अज़ान मोहतरम दुआ अहले बैत के दरवाजे पे लाया, कहा कि फरिश्तों ने दुआ की कि ऐ अल्लाह तो हमें अमीरुल मोमिनीन के चेहरे की आते हैं, अल्लाह ने मुकर्रब फरिश्ते को यहां रखा है कि उसको देखते जाओ, अली की जियारत का सवाब लेते जाओ। तो अब हमसे ना पूछना अलम की शबी क्यों है, ताबूत की शबी क्यों है, ताजिए की शबी क्यों है। जिस तरह मस्जिद काबे की शबी है, मस्जिद में आने का सवाब बेइंतहा है, जो मस्जिद में आता है उसको काबे तक पहुंचने का सवाब दिया जाता है। मस्जिद है काबे की शबी, वहां तक जा नहीं सकते, यहां पे आओ वो सवाब अल्लाह तुम्हें अता कर देगा। हज की बात नहीं कर रहा, उम्रे की बात नहीं कर रहा, लेकिन वहां जियारत का सवाब अता करेगा। जिस तरह काबे को मस्जिद को देख के, भाई क्यों, ये वजह है, वजह ये है कि मस्जिद को देख के हमें काबा याद आता है। तो जिसको देख के कोई चीज याद आ जाए वो शबी उस तक लेके जाती है। जिस तरह मस्जिद को देख के काबा याद आता है, अलम को देख के अलम अब्बास याद आता है, ताबूत को देख के ताबूत हजरत अली अकबर याद आता है जो उठा नहीं, हमें जुलजना देख के वो जुलजना याद आता है कि जिसकी वफा बेनिहायत है, जिसने सबने बेवफाई की तो इसकी वफा की इंतहा तारीख गवाह है। खुदा आपको सलामत रखे, आबाद रखे और किसी गम में मुब्तला ना करे, और हम सबको उसवे हसना मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। एक अजीम सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत अबू ज़र गफ़ारी। अजीम सहाबी रसूल, ईमान के 9वें दर्जे पे फायद हैं हजरत अबू ज़र गफ़ारी। ईमान के 9वें दर्जे पे फायद हैं हजरत अबू ज़र गफ़ारी। आप
वो हस्ती हैं, मेरी जाने कुर्बान हो जाए। नबी करीम का फरमान है, ना आसमानों ने अबू जर से ज्यादा सच्चा देखा ही नहीं। ऐसी हस्ती उन हस्तियों में से है कि जो हैदर कर्रार के दिफा के लिए एक नहीं कई मर्तबा आप बोले, और आपने कहा हक जो है नबी करीम का फरमान है, अली के साथ है। नबी करीम ने फरमाया मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला। नबी करीम ने फरमाया है अली मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी। नबी करीम ने फरमाया है अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से है। नबी करीम ने फरमाया है या अली लहमो का लहमी दमो का दमी सिल्मो का सिल्मी व हरबो का हरबी वल ईमान मुखालितुन लहमक व दमक कमा खालत लहमी व दमी व अंत गदन अलल हौज़ खलीफती व अंत तखज़ी दैनी व तुंजिदु इदाती व शियतुका अला मनाबिर मिन नूर मुबिय्यदतन वजूहुहुम हौली फिल जन्नह व हुम जीरानी वलौला अंत या अली लम युरफिल मुमिनून बादी। ये वो सहाबी हैं ईमान के 9वें दर्जे पे हजरत सलमान का भाई बनाया था नबी करीम ने। बेइंतहा अजमतों के मालिक, इनको शाम भेजा गया, शाम में रहे, लेकिन जबान है कि जिक्र अमीरुल मोमिनीन हर जगह बयान कर रही है, हर मकाम पे। और ये वो हस्ती है, मेरी जाने कुर्बान हो जाए, कि जो उस जनाजे में शरीक थे जो रात की तारीकी में उठा, जिसको गुस्ल रात के अंधेरे में दिया गया। वसीयत थी कि मुझे रात में गुस्ल देना, रात में कफन देना, रात में दफन करना। ये उस जनाजे में शामिल थे। खुदा आपको सलामत रखे। मदीना पहुंचे, फिर इनको भेजा गया कहां? रब्जा के सहरा में। ये वो सहरा है जहां ना पानी मिलता है, ना खाना मिलता है, कुछ नहीं, बेआबान। कहा गया आप वहां जाके रहिए। जब ये कहा गया कि आप वहां जाके, जाहिर है हक बोलने वाली जबान, सच बोलने वाली जबान, और अल हक को मुर्रोन, और हक तो कड़वा होता ही है। हक हर एक को बर्दाश्त नहीं होता। हक अली के साथ है, अली हक के साथ, हक बर्दाश्त नहीं होता। अब जबरदस्ती इनसे मोहब्बत नहीं करवा सकते। वही मोहब्बत करेगा कि जिसके दिल को अल्लाह ने आब विलायत से धोया हुआ है। हर बंदा नहीं कर सकता। जब ये रब्जे जाने लगे, तारीख गवाह है, जब इनको भेजा जाने लगा रब्जे की तरफ, तो हजरत अबू ज़र गफारी सहाबी जलीलुल क़द्र पैगंबर इस्लाम, जब ये जाने लगे रब्जे की तरफ, तो इमाम हसन, इमाम हुसैन मौलाए कायनात के साथ हजरत अबू ज़र को शहर के दरवाजे तक छोड़ने गए। मिलता है कि ज़ाहिर बकरियां इनके पास थी, मजीद दी गई। और रावी बयान करता है कि जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू ज़र के गले मिले हैं, तारीख में लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन की आंखों से आंसू ऐसे जारी थे जैसे 2 नहरें बह रही। मौला ऐसे रो रहे थे, आंसू जारी थे मौला के। मौला ने कहा अबू ज़र जाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अबू ज़र ऐसा हाबी रसूल, ए मेरे भाई परेशान ना होना, मैं अली आपके साथ हूं, मेरे बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हसनैन करीमैन आपके साथ हैं, आपने परेशान नहीं होना। अबू ज़र गए रब्जा के सहरा में, एक कुएं के पास आपने पड़ाव डाला। रब्जे के सहरा में आज भी उनकी कब्रें मौजूद है। 4 बेटियां और हजरत अबू ज़र गफारी ये पहुंचे। मिलता है कि जब वहां पे पहुंचे हैं ना, और बड़ी इनसे मौला ने आखिरी जब जाने लगे, बहुत तुलानी मौला ने इनको वसीयतें भी की, इनसे बातें की। नबी करीम की ऐसे बहुत बातें मिलती हैं जो हजरत अबू ज़र गफारी से तन्हाई में अकेले बैठ के आपने बातें की, और बेपनाह अहादीस हैं जो हजरत अबू ज़र गफारी से। बस इसी वाकये को मैंने रब्त देना है करबला की तरफ। हजरत अबू ज़र जब पहुंचे हैं ना सहरा में, मिलता है कि कुएं का पानी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, बारिश वारिश हुई नहीं। तो अब हजरत अबू ज़र गफारी उधर ही मौजूद हैं कि क्या करें। कहते हैं पानी की किल्लत थी, बकरियां मरना शुरू हो गई। कहते जब बकरियां मरना शुरू हुई तो कहते नौबत यहां तक पहुंची, पानी नहीं था, ज़ौजा गिरी और ज़ौजा दुनिया से चली गई। हजरत अबू ज़र गफारी ने, पानी तो था नहीं, तयम्मुम करके उनको दफन किया। अभी ज़ौजा को दफना के फारिग हुए थे, बड़ी बेटी जो थी वो दुनिया से चली गई, गिरी और दुनिया से चली गई। हजरत अबू ज़र ने उसको भी दफन किया, तजीज़ व तकफीन से, नमाज जनाजा से फारिग हुए थे। दूसरी बेटी जो थी वो चली गई। या साहिब समा,
दूसरी बेटी के तजहीज से, तकफीन से फारिग हुए, पता ये चला जो मंजली उसके बाद जो तीसरे नंबर की थी वो भी दुनिया से चली गई, उसको दफना के फारिग हुए। अब एक रह गई 4 साल की बच्ची और अकेले अबू ज़र। बेटी ने जब देखा ना, माँ को मरते देखा, माँ को बड़ी बहन को मरते देखा, उससे छोटी वो तीनों बहनों को जाते देखा, माँ को जाते देखा, एक तो वैसी बच्ची आधी दुनिया से चली गई थी। उसने जब ये सब मंजर देखा कि बाप की पुतली घूमना शुरू हो, बाप भी दुनिया से जाने वाला है। बच्ची ने हजरत अबू ज़र के कहती है, छोड़ के ना जाना बाबा, बाबा मुझे तनहा छोड़ के ना जाना इस सहरा में, मैं अकेली रह के क्या करूंगी बाबा, दुआ करें जो जो बीमार है, इंशाल्लाह आज मजलिस के बाद दुआ की जाएगी तमाम अफराद के लिए। बाबा मुझे इस सहरा में छोड़ के ना जाना बाबा, मैं यहाँ पे अकेली रह के क्या करूंगी। तो ये जुमला कहना था ना, बाप की आवाज आई, बेटी परेशान ना होना, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा ना बेटी, आपने ना मुझे दफनाने की कोई परेशानी लेनी है ना किसी और चीज की। बेटी यहाँ पे ना ये शाहराह है ना रास्ते में, तुम यहाँ पे खड़ी हो जाना, यहाँ पे एक मुसलमानों का काफिला गुजरेगा बेटी, मुसलमानों का जो काफिला गुजरेगा ना, ये वो है कि जो मेरे मौला अली के जानिसारों में शामिल हैं। रिवायत में मिलता मालिक अश्तर का काफिला, और उसमें इब्राहिम इब्न मालिक अश्तर ये सब मौजूद थे। कहते बेटा बेटी वो काफिला गुजरेगा, वो मेरे मौला के जानिसार उसमें होंगे, और सब आशिक है, सिर्फ उनको ये बताना है कि अबू ज़र दुनिया से चले गए। बेटी वो मुझे गुस्ल भी देंगे, मेरे मौला अली ने मुझे बताया था कि मुझे गुस्ल और कफन सब दिया जाएगा, आप बिल्कुल परेशान न हो। बेटी जमीन पे गिरा, उस सहाबी जलीलुल कद्र पैगंबर कहते हैं आंखें बंद हुई, मैंने देखा मेरा बाबा दुनिया से चला गया। कहते मैंने अपने बाप का सर अपने जानू पे रखा। हजरत अबू ज़र की बेटी कहती है मैं इतना रोई, इतना रोई, ये जुमला मुझे बड़ा रुलाता है। कहती है मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि मैं रोते रोते थक गई, किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने मुझे डांटा नहीं। कहते मैं रोते रोते थक गई, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। कहते मैं अपने बाप का सर अपने जानू पे रख के सर पे हाथ फेर रही हूँ, बाबा मुझे अपने बाबा से बातें की। कहते फिर थोड़ी देर के बाद मैंने एक तकिए की शक्ल में बाबा के सर के नीचे रख के और मैं खड़ी हो गई शाहराह की तरफ, देखूं अब कौन आएगा और किस तरीके से मैं अपने बाप की तजहीज और तकफीन के लिए इंतजाम करूं। कहते मैंने देखा गर्द उठी और सामने से काफिला आता हुआ नजर आया। कहते काफिला करीब पहुंचा, जब काफिला करीब पहुंचा तो हजरत अबू ज़र ने कहा था बेटी तूने एक आवाज देनी है, अय्युहल मुस्लिमून मातल गरीब अस्सलात, ए मुसलमानों एक गरीब मर गया उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो आके। कहते हैं बेटी ने उसी तरह से कहा अय्युहल मुस्लिमून मातल जुमला कहा है ना अय्युहल मुस्लिमून मातल गरीब अस्सलात, तो फौरन हजरत किसने, हजरत अबू ज़र गफारी की बेटी ने कहा कि मेरा बाबा दुनिया से चला गया। का कौन तेरा बाबा? का मेरे बाबा का नाम है अबू ज़र गफारी। का वही अबू ज़र गफारी जो हर लम्हे हर मकाम पे मुदाफ़े हुकूक अमीरुल मोमिनीन अली